السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وہ فلم ڈائریکٹر جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو نئی جوہتوں سے روشناس کروایا اور اپنے فن میں آسمان کی بلندیوں کو چھوا۔ محترم جناب ہیرا سپر ہٹ صاحب۔ ہائے ہیرا جی، آج تو جنید صاحب نے تعریفاں دے پل بن دیتے نے۔ بیٹا مجبوری ہے ان کی، مجبوری ہے۔ میری کیا مجبوری ہے؟ لفظ منہ سے نکلنے کے لیے ہیرے کے محتاج۔ واہ واہ فن جو ہوتا ہے، واہ، فن ہیرا جی ساری رات درد ہوندی رہی، پٹی کرائی لینی سی تسی۔ او میرے بچیا، جو فن ہوتا ہے وہ مجبور کر دیتا ہے نقاد کو۔ بیٹی، جہاں بھی فن کریٹ ہو رہا ہو، نقاد کے لفظ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ فن کبھی قلم کی نوک سے نکلتا ہے، یہ فن کبھی کیمرے کے لینس سے نکلتا ہے، یہ فن کبھی ایکٹر کے ایکسپریشن سے نکلتا ہے، یہ فن کبھی ڈائریکٹر کے ڈائریکشن سے نکلتا ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کھڈ سے نکلا فن ایسے۔ اور وہ فن نہیں، وہ فن ہوتا ہے، فن۔ وہ سانپ کے فن کو فن کہتے ہیں، فن نہیں کہتے۔ ہاں، وہ جو اس کا ایسے ایسے کرنا ہے وہ فن ہے۔ کیا بات ہے، What a definition! مگر ہم بیٹے پرفارمنگ آرٹ کے لوگ ہیں۔ کیا بات، ہمارے ہاں ہیرو کے چہرے سے نکلنے والے ایکسپریشن فن ہے۔ ہمارے ہاں ہیروئن کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو فن ہے۔ ہیرا جی ساڈی فیلڈ جتے ہن سر نہ بڑا فن پروڈیوسر کو پیسے کਢਾਣਾ ہے۔ نہیں جیتے بیٹے، یہ فن نہیں ہے، یہ قوم کے احساس کی بات ہے۔ فنکار تو جب فن دکھاتا ہے تو اگر فوری طور پہ پروڈیوسر اس کی تلی پہ اس کا معاوضہ نہ رکھے تو قوم کو بھاگ نہیں لگتے۔ اس قوم کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جی 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 جی، جب آپ فنکار کی تلی پہ اس کا معاوضہ رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ سلامت رہیں، بھاگ لگے رہیں، کیا بات، پھر قوم کو بھاگ لگتے ہیں۔ میں غلط کیا تو سو کیا بات ہے، بول دے نہیں پتری۔ بھاگ لگے رے، آہا بھاگ لگے، یہ تو پھر تسی جنہ سریلا کہ وہ انہیں سریلے پاگ دے۔ سلامت رہے۔ ہیرا صاحب، اگر آپ یہی کچھ کرتے رہیں گے، بھاگ لگے رہیں، جوڑیاں سلامت رہیں، تو فلم کون بنائے گا؟ یہ ہوتا ہے بیٹے فنکار، یہ ہے فنکار۔ ہیرا جی فنکار کی کیا پہچان ہے کہ ہم نے صرف بھاگ لگے رہے کی بات کی ہے، انہوں نے اپنے پلے سے جوڑیاں سلامت رہے بھی کہا۔ ان کو پتا بھاگ لگنے کا؟ لو پتر پتہ ہے تو بھاگ لگے نہیں تھے بیٹھے، واہ جی واہ، ورنہ زیادہ تو زیادہ انہاں دے اکاڑے چ پلے مشہور ہوتے، اور پلے بھی کو اچھے ذائقے دی وجہ تو مشہور نہیں سن ہونے۔ اے مشہوری ہونی سی کہ یار وہ پلے والا کمال ہے، پلے پاندا نال گانا بھی گاندا ہے، ہم تم یہ بہار دیکھو رنگ لایا پیار برسات کے مہینے میں۔ واہ 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 واہ، یا ایسے پلے والے کی صرف یہ مشہوری ہوتی ہے کہ یار وہ پلے والا جڑا مٹی دے پیالے چ پلے دے دے۔ ہیرا جی تسی پلے لواتے ہیں، میں تے ڈاکٹر لگ رہے ہیں۔ بیٹے پلیاں دا کام بھی کو معمولی نہیں رہ گیا، یہ کرنے پیا۔ اچھا جی سر، پتر کروڑاں روپیہ کمانڈے نے پلیاں تو۔ ہیرا جی ذرا یاد کریں، میں نے کتنے اچھے لفظوں میں آپ کا تعارف کروایا ہے۔ تے پتری یہ بھی بڑا اچھا کم جے کی اور کر کیا جب بھلے بکوا رہے ہیں مجھ سے یار۔ دسو یار پلے دا تو زمانہ ہی نہیں رہا، یعنی اسی پلے دی گل کرنے یا غصہ کرنے نہیں۔ ہیرا جی خدا کا نام لے، صرف باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، کوئی فلم بھی کبھی کوئی پوری ہوئی ہے؟ پتری تینو کی دسیے اس ملک چ فن نال کی ہو رہی ہے۔ ہیرے سپر ہٹ نے فلم بنا کے سینمے چلائی ہے، ٹائٹل سی غنودگی۔ اچھا، ایہو جی فلم بنائی ہے جنید احمدہ، تینو میں کی دساں، ایہو جی فلم بنائی ہے غنودگی۔ ہائے 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 ہائے، پہلا شو چلے ہے، ہلے 4 سین چلے نے، سارا حال سینمے دا سونگ ہے۔ غنودگی فلم ہے، ہزاروں پہ غنودگی چاہیے۔ واہ یار، پتر سارے سونگ نے۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ پروڈیوسر میرے نو دندل پہ آ گئی ہے، تھنے ڈس پہ بھی ہو جو گیا ہے، میں پانی دے چھٹے لینے جن چک چک اٹھائے ہے، میں کہ کی بن گئی ہے فلم، تیری ہٹ ہو گئی ہے۔ کہندہ ہیرے سپر ہٹ کی پیا کرنا ہے، لوکی سو گئے نے، فلم تے فلاپ ہو گئی ہے۔
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਰਰ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਰ ਫੈਲ ਜਾਏ ਇਹ ਗਨੂਤਗੀ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗਨੂਤਗੀ फैल गई है सुपर हिट हो गई हो हीरा जी फिर आप अपनी एक फिल्म का नाम नहुसत रख लें ताकि सारे हॉल में नहुसत है जुनैद जी तुसी मजाक विच पै गए हो नाम दा बड़ा असर हुंदा जी बच्चे दा नाम एवें नहीं सोच के रखदे बुजुर्ग सही फिल्म दा नाम है जिहड़ा ओदा भी बड़ा असर हुंदा है सही बात है ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਛੱਡੋ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਨਕ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਈਦ ਦੇ ਛਤਰੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਛੱਡੋ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ जहाँ इन्होंने बहना खिलौना है ना वहां पे लोग गालियां भी इनको देते हैं सुननी तो है पहलवान फिल्म फ्लॉप हो जाए तो गम नहीं करते राज कपूर की मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी मगर शनाख्त उसकी मेरा नाम जोकर से ही हुई चीते में कोई झूठ बोले है ਸੌਰੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ लो यानी आप इनकी फिल्म पे फिल्म फ्लॉप करवा के सिर्फ अपनी शनाख्त बनवाना चाह रहे हैं ਹੀਰਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾ ਲਓ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਤੇ ਨਫਾ ਬਹੁਤਾ 8 ਡਰਮ ਲਵੋ ਨੀਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 2 ਮਨ ਅੰਬ ਸਟਾਓ 4 ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਲਵੋ ਵਧੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਓ ਕਰੋ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨੌਬਤ ਫਾਕੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਾਂਗਾ हाय। हाय ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਇੱਥੇ ਫਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ओहो ਆ ਹੀਰੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੀਰਮਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰੀ हीरा जी कुछ करें मेरा तो खर्चा ही होता जा रहा है 6000 के तो मैंने लेंस खरीद ली हैं ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ लो ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਏਡੇ ਸਮੋਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲੈਂਸ ਲਾਣ ਦੀ सर मैं खूबसूरत लगना चाहती हूँ ਉਹ ਜਿੰਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਏ क्या मतलब ਹੀਰਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ अच्छा इश्तिहारात की तरफ आ रहे हैं और निजी नहीं कमर्शियल करते कमर्शियल प्लाजा बन रहे हैं अच्छा ਉੱਥੇ ਬਜਰੀ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਲਓ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 13 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੀਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਰਡ ਸੱਦ ਲਏ ਨੇ हाय। अरे वाह 6 ਗਾਰਡ ਆਗੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ क्या प्रोटोकॉल मिला है सर आपको ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਾਰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 13 ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ 6 ਦੇ 6 ਨੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ क्या कवर किया है ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ वो कहते नहीं जी केड़ी फिल्म में क्या हजूर जो इश्तिहार होता है कमर्शियल आपके प्लाजे का तरबूज प्लाजा वो मेरे सेठ साहब कहने लगे कि मियां मेरा सारा प्लाजा बिक गया हुआ है मुझे तो इश्तिहार की जरूरत नहीं है वो मैं क्या हजूर हर कम जरूरत के तहत ही नहीं करीदा इन्ना पैसा लाया जी प्लाजे ते फिल्म एदी ते भी कोई पैसा लाओ जी वाह लो जनाब वो मैनू कहने लगा कि मैनू ये दसो तुसी उत्ते किस तरह आए हो देख सर जनाब जी मैं सज्जे खब्बे देख लिया कि बारी ते नहीं किधरे ये ना होवे कि खिड़की खोल के ऊपर थले सुट देवे तो फनकार से इस माशरे में हमेशा ज्यादती होती रही सही बात है वाह लो जी खिड़की कोई नहीं सी ते मैं फिर उन्होंने दसिया मैं कहा जनाब
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਬਜਰੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਚ ਆਨ ਕਰ ਆਇਆ। घूमती है। जी जुनैद जी, मगर जुनैद साहब आप जानते हैं कि लाख सौबतों और मजालम के अंदर भी फनकार के फन की तख्लीक बाज नहीं आती। क्या बात उस मशीन के अंदर घूमदियां ही मैं इश्तिहार सोच रही लो लो जी, इधरों मेरे दिमाग च इश्तिहार पूरा होया, उधरों मशीन ने मैनू बाहर सुट दिता। जुनैद साहब पूरा सीमेंट च लिबड़े आ, हीरा सुपर हिट जदों उठ के खलोता है ते मशीन दा ड्राइवर वेख के चीख मार के दौड़ गया। क्यों सर? जुनैद साहब एकदम मेरे जेहन च आया कि अगर मैं घर जाके नहाता तो घर जान तक तो मैं सुक जाऊंगा और सारा फन भी बह जाएगा। बह जाएगा। मैं नेड़े किधरे देखिया छप्पड़ छप्पड़ नजर आ जाए। प्लाजे ते बिल्कुल सामने सूआ लंघ रहा सी, मैं सूए च छाल कट मारी, बाहर निकले सीधा कर गया, कपड़े बदल के तुहाडे कोल आ गया। हुण हुक्म करो मैं फिल्म केड़ी बनानी है? मैं जरा ये ब्रेक ले लूं, फिर मैं भी गार्ड को बुलाता। पुत्र उठ के देखो, थल्ले बजरी वाली मशीन ते नहीं चल रही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जनूबी अफ्रीका सिट्रस के जरिए हमसे आधे से भी कम रकबे के जरिए हमसे मेरा ख्याल 4-5 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है। $2 अरब कमा रहा है वो। वाह जी वाह। हम कितने कमा रहे हैं? बमुश्किल 22 करोड़। अच्छा भाईजान, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि हम बाज़ मजमूई तौर पे बहसीयत कौम हम कुछ गलत फहमियों का शिकार हैं, अपने बारे में खुशगुमानियों का शिकार हैं। उनमें से आजकल एक खुशगुमानी बहुत शिद्दत से मुझे याद आ रही है, वो ये है कि ज़ाहिर सर्दियों का मौसम है, किन्नों का मौसम है, माल्टे का मौसम है, सिट्रस फ्रूट का मौसम है। उसमें मेरे ज़हन में आ रहा था कि हम ये समझते हैं और आज तक समझते हैं कि किन्नों हमारा अपना फल है और हमारा जो किन्नो है ये वर्ल्ड बेस्ट किन्नो है, ऐसा किन्नो कहीं नहीं होता। ये दोनों बहुत बड़ी खाम ख्यालियाँ हैं हमारी। अच्छा। और एक पहली बात तो ये है कि ये किन्नो जो है ये हमारा कोई फल नहीं है, ये अमेरिका से आया हुआ है। आज से कोई 70-80 साल पहले ये अमेरिका की इजाद है। अमेरिका ने ये जो है वेरिएंट जो है ये दिया था, इसको हाइब्रिड बना के मुख्तलिफ जो है दो, बल्कि कहा जाता है कि 2 मुख्तलिफ अक़साम थी सिट्रस फ्रूट की, एक किंग और एक विलोली। तो किंग से किन लिया गया और विलोली से विलो लिया गया, तो किन्नो बना, किन्नो बना। तो ये किन्नो जो है ये अमेरिका से आया हुआ है। अब फिर दूसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारा किन्नो बड़ा लाजवाब होता है जायके के एतबार से, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जितना किन्नो पैदा करते हैं ना, बल्कि बहसीयत मजमूई जितना हम सिट्रस फ्रूट पैदा करते हैं जिसमें किन्नो भी है, मौसमी, माल्टा सारा शामिल है, उसका बमुश्किल 20% हिस्सा ऐसा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। बमुश्किल 20%। इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, ना होने के बराबर, अब इसके बड़े दिलचस्प आदाद शुमार है। फलों को अगर देखा जाए तो या दीगर हमारी जो इटेबल की एक्सपोर्ट्स हैं उनको देखा जाए तो किन्नो उनमें जाहिर है कि 2-4 जो टॉप की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें आता है। लेकिन जब बहसीयत मजमूई इसकी मालियत देखी जाए तो वो कितनी होती है? सिर्फ $22 करोड़। और हम इस वक्त 5 लाख एकड़ पे सिट्रस फ्रूट काश्त कर रहे हैं, जिसमें से 5 लाख एकड़ में से 4 लाख एकड़ पे सिर्फ किन्नो काश्त कर रहे हैं। बाकियों में माल्टा मौसमी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि ये भी हम बिल्कुल अपने वसाइल का ज़िया कर रहे हैं। अच्छा जी। थोड़ी सी मेहनत की जाए ना, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हम अपनी सिट्रस की पैदावार जो इस वक्त अंदाजन 24 लाख टन है, इसको हम 1.25 करोड़ टन पे लेके जा सकते हैं। यानी जिस सिट्रस फ्रूट से हम बमुश्किल $22 करोड़ कमा रहे हैं, उससे हम $1.5 से $2 अरब कमा सकते हैं। वाह जी वाह। बल्ले 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 बल्ले। वैसे ईमान से मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जी जी, सारी रात तुम जागते रहते हो, जितना तुम्हारा फल फ्रूट के हवाले से नॉलेज हो गया, सवेरे मंडी भी निकल जाया करो। तो क्या करूं मंडी जाके, जब होगा ही नहीं बेचने के लिए तो क्या करूंगा? तो यार यही बातें जाके उनको भी बताया करो। मंडी का कसूर नहीं है, हमारे जो हुक्मरान है उनका कसूर है, फिर अल्टीमेटली काश्तकारों का कसूर है जो एक आदत का शिकार हो चुके हैं। तो देखो, मैं मोटी सी बात है
کہ ہم بآسانی یہ جو 5 لاکھ ایکڑ پہ ہمارا مشتمل زیر کاشت تک پہ جہاں پہ ہم سٹرس اگا رہے ہیں، اس کو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اچانک 25 لاکھ ایکڑ پہ کیسے لے جائیں؟ بہت آسانی کے ساتھ دیکھو، جو مشہور ہمارے اضلاع ہیں، جو یہ سرگودا ہے، میاں والی ہے، اکاڑا ہے، ساہیوال ہے، یہاں پہ آپ صرف کاشتکاروں کو ترغیب دیں کہ وہ کاشتکار بننے کے ساتھ ساتھ باغبان بھی بن جائیں۔ مثلاً کاشتکار ایک سیزن میں 2 فصلیں کاشت کرتا ہے اور ان 2 فصلوں سے وہ سالانہ بمشکل 1,20,000 روپے کماتا ہے۔ اگر وہ اس کی جگہ سٹرس کاشت کرتا ہے نا، کنو، مالٹا، موسمی وغیرہ کاشت کرتا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہ 2 لاکھ روپے تک کما سکتا ہے۔ اچھا، اب پرابلم دیکھو کہ اس وقت ورلڈ مارکیٹ میں ہمارا کوئی نام نہیں، کوئی 15ویں-16ویں نمبر پہ ہم آتے ہیں۔ ہاں جی، لاری اڈیوں کی نکر پہ مالٹے کے ڈھیر ویکھ کے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بڑا مالٹا ہی۔ ہاں، بڑا مالٹا ہے۔ اچھا، ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارا جو سٹرس ہے، کنو ہے، وہ ورلڈ مارکیٹ میں اس کو کوئی بہت زیادہ لفٹ نہیں کروائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10-15 برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ہی دنیا کی مارکیٹ تلاش کی ہوئی ہے جہاں پہ ہمارا غالباً 80-90% جو ہے وہ سٹرس جاتا ہے، اور وہ ہے رشیا۔ ہاں، ابھی یہ آپ دیکھتے ہو عرب دنیا میں کنو یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری مین مارکیٹ جو ہے وہ رشیا ہے۔ اچھا، اب دنیا میں جو اسپین ہے وہ نمبر 1 جو ہے وہ سٹرس کا ایکسپورٹر ہے۔ اچھا، نمبر 2 یا نمبر 3 غالباً جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ ہے۔ اب ذرا میری بات غور سے سننا، ساؤتھ افریقہ جو ورلڈ نمبر 2 اور 3 ہے اور ہم نمبر 15 ہے، وہاں پہ جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ ہم سے نصف سے بھی کم ہے۔ ہم کر رہے ہیں 5 لاکھ ایکڑ پہ اور ساؤتھ افریقہ کر رہا ہے صرف 2 لاکھ ایکڑ پہ۔ نہیں تو وہ ہم سے اتنا آگے کیسی ہے؟ ہاں، دس از دا کوسچن، وہ ہم سے آگے کیسے ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اچھی بریڈ چنی ہوئی ہے، وہ جو اچھی قسم کا سٹرس جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، ہم فضول قسم کا سٹرس پیدا کر رہے ہیں۔ ہم پوری دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ذائقے کے اعتبار سے اچھے کنو ہیں، پھر سیڈلیس کنو ہیں، یعنی بیج نہیں ہوتے، اس میں بیج نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ یہ بیج والا مسئلہ بھی سینسٹیو بندوں کا، یا گوگا بیجا سمیت بھی کھا جاتا ہے، یہ کیڑی گالی۔ تو جنوبی افریقہ سٹرس کے ذریعے ہم سے آدھے سے بھی کم رقبے کے ذریعے ہم سے میرا خیال 4-5 گنا زیادہ پیسے کما رہا ہے، $2 ارب کما رہا ہے وہ۔ ہم کتنے کما رہے ہیں؟ بمشکل 22 کروڑ۔ اب سننے میں آیا ہے ہمارے جو وزیر فوڈ سیکیورٹی ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان، ان کا ایک فرمان سامنے آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے اس سال پاکستان کی جو سٹرس کی ایکسپورٹ ہے وہ $22 کروڑ سے جمپ کر کے $30 کروڑ تک چلی جائے گی، لیکن پوٹینشل کتنا ہے؟ $2 ارب تک، مطلب آسانی کے ساتھ۔ ارے تو یار یہ جو اہل اختیار لوگ ہیں جو اس ایکسپورٹ کو اسی پلان کے تحت بڑھا سکتے ہیں، کیا پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے کو کنا دے پردے ٹھلے ہوئے نے یا انہوں نے پردیاں دے چھلے نویں پہن والے نے؟ لگتا تو یہی ہے کہ وہ بہرے ہیں۔ اگر ایک عام آدمی کو یہ سارے اعداد و شمار کا پتہ ہے کہ ہم زیر کاشت رقبہ بڑھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، یا زیر کاشت رقبہ اگر اتنا بھی رکھا جائے، نئی بریڈ تلاش کر لی جائے، نئے ویریئنٹس تلاش کر لیے جائے، اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اس کا مطلب ہم سوئے ہوئے ہیں، بہرے ہیں ہم، اور کیا۔ اچھا، دوسری طرف کسی دن یہ بھی اگر انالیسز آپ کرنا چاہو نا، یہ غور کرو تو جو بہت آگے اس وقت ممالک نظر آتے ہیں وہ چند سال پہلے بہت پیچھے تھے، اپنے ٹارگٹ سے، اس وقت موجودہ ٹارگٹ سے بہت پیچھے تھے، مگر اب جدید دور آ گیا ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، آپ کو بہت زیادہ انفارمیشنز بڑے آسان اور بڑی کم وقت میں مل جاتی ہیں۔ اب لوگوں نے ان پچھلے 8-10 سالوں میں بہت تیزی سے ترقی کی، مگر ہم اسی چال میں ہیں، آئی مین کچھوے کی چال۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب حسب حال چلتا ہے، جی یقین کریں گے آپ؟ ہاں کروں گا جی۔ آپ کی بھابھی کے سامنے اونچی آواز میں صرف میں 11 سے 12 تک بولتا ہوں، وہ بھی اس وجہ سے کہ حسب حال لگا ہوتا ہے، ادھر ببر شیر بیٹھا ہوتا ہے۔ ناظرین، نئی شکایتوں کا نیا پلندہ لیے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں
क्रॉनिक टीवी व्यूअर लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रवैये से ज्यादातर शाकी और नाला, जनाब नाजिर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद मियां। पहली बात तो ये है कि अगर आप हमारी गुफ्तगू को या हमारे जो मशवरे होते हैं उनको शिकायत समझते हैं तो अभी उठ के चल देते हैं। ना खास्ता है, देखिए शिकायत तो शिकायत है ना, आप नाला तो है। नहीं देखिए नाला नहीं है, आप हमारी जिन जान है भाई, जिन जान है। आपके बगैर गुजारा भी तो नहीं है। देखिए बाज दफा नाला क्या, आप तो गाला हो जाते हैं, गालियां देनी शुरू कर देते हैं। जुनैद मियां, जो दर्द अपनों दिया गैरों से शिकायत कौन करेगा? देखिए गौरी मियां, बात पता क्या है, अपनों को ही बताया जाता है ना। जी बिल्कुल। हम तो भाई इश्क करते हैं आप लोगों से। मुझसे भी सर, मुझसे भी। यकीन जी बैठिए, आपसे भी थोड़ा बहुत। जब हस्ब हाल चलता है, जी जी यकीन करेंगे आप। हाँ करूंगा जी। आपकी भाभी के सामने ऊंची आवाज में सिर्फ मैं 11 से 12 तक बोलता हूँ। वो भी इस वजह से कि हस्बे हाल लगा होता है, इधर बब्बर शेर बैठा होता है, वो आपको हौसला देता है बीवियों के सामने डट जाने का। अरे यही तो मार खाता हूँ। वो कहती है किस तरह बोल रहे हो, वो देखो इतना बड़ा सहाबी घर में बर्तन मांजता है, वाह वाह। घर में कपड़े धोता है, घर में बारी लगा रहा होता है, और तुम नुकम्मे नखट्टू फारिग, और देखो ऊंचा कितना बोलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, हम भी तो हस्बे हाल के आशिक हैं, इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि जरा थोड़ी आवाज मध्यम रखो। क्या कहने, हम भी तो पड़े हैं राहों में। चूंकि अपना समझते हैं इस प्रोग्राम करो, इसलिए आपसे चंद मशवरे लेके आपके पास गोश गुजार करने के लिए आ जाती है। भाई बात ये है, आज जो बात करने के लिए आए हैं वो ये है कि ड्रामा चल रहा होता है, हीरो साहब दुखी है, सीन ऐसा है कि बीवी गई हुई है और सिगरेट लगा के अकेले बैठे हुए, ऊपर डायलॉग ओवरलैप हो रही। चलो भाई आपने मंजर कशी तो कर ली, मगर खुदा के वास्ते इसके हीरो के मुंह में सिगरेट दे के आप हमारे बच्चों को क्या एजुकेट कर रहे हैं। हजूर जब बीवी मेके गई होती है ना, तो वो बंदे जिन्होंने सारी जिंदगी सिगरेट नहीं पिया होता, वो भी खुशी में सिगरेट नोच बन जाते हैं। सिगरेट खुशी में नहीं पिया। जो चीज आपका अंदर जलाती है वो क्या खुशी में पी जाती है? क्या कहने सर? बिल्कुल नहीं। और देखिए गौरी मियां, हम जैसे मासूम लोगों को तसल्ली क्या दी जाती है कि उस सीन के कॉर्नर पे, स्क्रीन के कॉर्नर पे लिख दिया जाता है स्मोकिंग किल्स। खुदा के लिए देखिए, ये 50 दफा हम ये बात कर चुके हैं और आपकी वसातत से ही कर चुके हैं कि भाई खुदा के लिए, सीन में जान डालने के लिए, सीन का तासुर कायम करने के लिए जरूरी नहीं कि एक ही रास्ता होता है, उसके कई और रास्ते होते हैं, कई और रास्ते होते हैं। आपने गंदा रास्ता ही चुनना होता है। बुरी बात भाई आप अब तो सिगरेट को तो छोड़िए जुनैद मियां, अब तो शराब पीते हुए दिखाती है। माजरत के साथ हमारी बिटिया भी बैठी हुई है। देखिए बिटिया, ये जो सिगरेट नोशी, ये शराब नोशी, ये ड्रामों में स्क्रीन के ऊपर दिखाना, जबकि आपको मालूम है कि बच्चे भी बैठे हुए हैं ड्रामा देखते। ड्रामा एक ऐसी चीज है जिसको हम फैमिली के साथ देखते हैं, और पाकिस्तान की टेलीविजन में तो ऐसे ऐसे फनकार मौजूद हैं, आप सिगरेट कोसों दूर कर दें उनसे, अपनी एक्सप्रेशन से, अपनी डायलॉग की डिलीवरी से ऐसा तासुर बांध देंगे कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि सिगरेट इसके हाथ में है या नहीं। मलक साहब, ये डिलीवरी की है या कोई नट खोला है आपने? देखो, नट खोलने वाले रेंज यार तुम बात करने से पहले देखा करो कि इससे मुतल्लिका जितनी चीजें हैं वो उनमें से कोई मेरे से मुशाबे तो नहीं है। बात बच्चा है ना, नटखट है। हम इस वक्त सीरियस बात करनी चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को ये बताया जाए, बल्कि ये जो मीडिया मेंबरान है, मीडिया के करता लोग हैं, इनको ये बताया जाए कि खुदा वास्ते इस तरह की चीजों को अवॉइड किया करो। कोई ऐसा सीन देखिए, अगर आप ये कहें कि भाई ये दुनिया में हो रहा है, अब तो हर आदमी सिगरेट पीता है, तो भाई हर आदमी तो और भी बहुत से काम करता है। क्या आप वो सारे कामों पे पर्दा उठा देंगे? नहीं, आपको चाहिए कि सिर्फ
उस तरह की ड्रामे दिखाए जाएं जिससे बच्चे अच्छी तरबियत हासिल कर सकें, अच्छाई की तरफ गामजिन हो सके। बहुत अच्छे। हमने देखा है ऐसे ऐसे लायानी से सीन होते हैं जिसमें कोई जरूरत भी नहीं होती, वो सिगरेट के या शराब के बगैर भी हो सकता है, हाँ जी। अगर उसमें इस तरह की मंशियात का इस्तेमाल कर। अब तो नए नए जो नशे आ चुके हैं वो बल्कि इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं लोग। अरे भाई क्या कर रहे हो, लोग इंटरटेन होने के लिए बैठे हुए हैं, तफरीह हासिल करने के बैठे हुए हैं, बच्चों को खराब करने नहीं बैठे हुए। बिल्कुल बच्चों को संभाल के दिखाइए जो दिखाना है। बहुत अच्छा। इसलिए आपको अल्लाह ताला ने जब कैमरे के सामने इज्जत बख्शी है खड़े होने की, जी जी अल्लाह ताला ने गौरी मियां, जी 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 आप तो खुद बहुत बड़े फिल्मकार हो भाई, हाँ, जी, तो जी। आशिक है आपके, आप तो माशाल्लाह इस सूरत हाल पे कारबंद रहते हो, इन असूलों पे कारबंद रहते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहरबानी, मेहरबानी, साफ मेहरबानी। सुथरे आदमी हो। जब अल्लाह ताला ने आपको उठा के इतने सारे लोगों में से ऊंचे स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया है, अल्लाह माफ करे जी। या कैमरे के सामने खड़ा कर दिया है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत बख्शी, बड़ी मेहरबानी। आपको अल्लाह ताला ने नुमाया किया है। तो जब आप नुमाया नजर आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इस तरह की हरकतें करें कि आप नुमाया रहें। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह बता रहा था, कहता मैं भी पढ़ा लिखा लगने के लिए ना पेन यहाँ पे लगा लेता था। कहता मोहल्ले में अक्सर बुजुर्ग मुझे मिलते थे, कहते थे पुत्र ना तेरा नहीं बनता। नहीं बेवकूफी करता था ना, फिल्म में जा रहे थे पेन ला रहे भाई आते हैं ना, तो उथे सुल्तान रही मुस्तफा कुरैशी ने नंबर दे के जो बात डिस्कस करना चाहता हूँ वो पढ़े लिखे लोग उसका बहुत मजा लेंगे। अच्छा। ये जो आजकल हमें बाल पॉइंट नजर आती है लिखने के लिए, हाँ जी। तड़ातड़ फटाफट सी बाल पॉइंट कट के ये तो फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं। ये बाल पॉइंट हमारे सामने आई है। जी हाँ, ये बाल पॉइंट की जगह पहले पेन हुआ करता था। बिल्कुल। और पेनों में ईगल का और बहादुर का पेन बड़ा मशहूर होता है। खुल के बात करो, तुमने तो वो दौर भी देखा हुआ है जब परिंदे के पर को दवात में डुबो के लिखा जाता था। लजी मानल मैनू ये भी नहीं पता कि लिखा जाता, ये एडा पुराना जी, इन्हू हर गल दा पता। अच्छा, वो जो होता था ना जी पेन, वो एक बड़ी मजे की चीज, क्या बात है। उसमें स्याही भर के लिखा जाता था। हाँ जी, इसलिए पेन के साथ साथ हर लिखने पढ़ने वाले बंदे के पास स्याही की दुआत भी होती थी। अब उस दुआत में भी 2-3 रंग होते थे, काली स्याही, लीली स्याही, हाँ जी, रेड स्याही, ये 3 स्याहियां तो बहुत मशहूर थी। तो ग्रीन भी वैसे होती थी। अच्छा। तो ये 3 स्याहियां तो होती थी, मगर काली और नीली स्याही तो हर घर में मौजूद होती थी। और उर्दू के जब गलत जुमलों की इस्लाह की जाती थी तो ये बताया जाता था कि स्याही जो है वो सिर्फ काली स्याही होती है, सुर्ख स्याही नहीं होती, सुर्ख रोशनाई होती है। सब स्याही नहीं होती, सब्ज रोशनाई होती हाँ है। जी, याद है? ये हाँ जी, लिखने वाली जो स्याही होती है उसको रोशनाई कहते हैं। अच्छा, उसमें मजे की बात ये होती थी कि वो जो पेन होते थे ना, जी, जी। उनकी स्याही भरने के लिए जो सिस्टम होता था ना, वो 2 तरह का होता था। कई पेनों का सिस्टम ये होता था कि उधर पीछे छोटा ढक्कन ला के ना, तो इसको दुआत में डाल के तो ऐसे ऐसे करके दबा के एक दूसरा होता था ड्रापर सिस्टम। अच्छा। ऐसे जैसे ड्रापर का नहीं भर के तो आंख में डाल देते या बच्चों को पिलाते, इसी तरह का ड्रापर लगा होता है। गौरी आंख में भी डाल लेता। हाँ जी, वो ऐसे दबा के तो दवात के अंदर डाल के तो ऐसे छोड़ते थे तो स्याही भरी जाती थी। ये 2 तरीके होते थे। अच्छा, एक और मजे की बात क्या होती थी? अजीजी पेंसिल भी तो थी साथ, कच्ची पेंसिल भी तो थी। कच्ची पेंसिल तो होती है, अच्छा, वो तो खैर स्याही के बगैर ही होती वो थी। तो अब भी होती है। अब भी होती है। वो जहां पे कच्चा लिखना उसे कच्ची पेंसिल इसलिए कहते हैं कि उसके साथ जो कच्ची लिखाई करनी है, जिसके ऊपर या लिख लेना है, जैसे तख्ती पे हम पूरने डालते थे, उसको पूरने कहते थे। आपको तो माशाल्लाह पता होगा उसको इंग्लिश में क्या कहते थे? पूरन्स, पूरन्स। महाशी पूरन देवदास की। तो
तो वो ना जी स्याही के हवाले से एक बात ये बताना चाह रहा हूँ जी, जी। कि वो दुआत भी हम रख लेते थे उसमें पास बस्ते में बैग। तो अक्सर ये होता था कि कभी पेन लीक करके तो किताबों का बेड़ा गर्क करता था या बस्ते में नास मार देता था, तो किसी वक्त तो दुआत स्याही वाली लीक कर जाती थी। वो तो किन्नी अड़ियां किताबों का भी बेड़ा गर्क करती थी और बस्ता भी खराब। क्या करो अम्मा को कोट वखरी। अगर दवात लीक कर जाती फिर तुम कहते थे ना बेड़े ही गर्क हो गए, फिर तो पूरा बैग बैग ही खराब हो गया, शीशे की होती थी ना, वो टूट भी जाती थी। टूट भी जाती थी क्योंकि बैग से अक्सर लड़ाइयां होती थी, बैग एक दूसरे को मारते थे। हाँ, और उसके साथ वो स्याही वाली दवात टूट जाती थी। अच्छा, पेन के हवाले से एक और मैं ये की चीज आपको याद कराऊं, दफ्तरों में या ज्यादा मॉडर्न पढ़े लिखे घरों में भी हाँ जी। पेन रखने के लिए पेन होल्डर होते थे। वैसे उनके ऐसे दो लगे होते थे खोखे से, अच्छा। ऐसे पेन का ढक्कन होता है इस तरह के पुट्ठे, अच्छा, तो उनके अंदर ऐसे पेन रख देते। लटकाए जाते। हाँ, उसे क्या कहते थे, कलमदान कहते थे उर्दू में। कलमदान उर्दू में हाँ जी, और इंग्लिश में पेन होल्डर। अच्छा, वो जो पेन हुआ करते थे ना, उनकी एक चीज बहुत ज्यादा टूटा करती थी, वो बॉल पेन की भी बाद में टूटती थी। वो तो वो लगाने के लिए उनका जो साथ एक लंबा सा हैंडल होता था ना, इसके साथ वो लगाते थे। वो इंसान आमतौर पर दांतों में लेता था या ऐसे खेलता रहता था, तो तीसरे चौथे दिन वो जो है वो टूट जाता वो था। पेन का ऊपर ढक्कन खोल के तो निकल भी आता था। निकल भी आता था। हाय, वो बड़ा मजा आता था खोलने का, दोबारा फिट करना। अच्छा, फिर वो अगर आपको याद हो, उन जितने ये पेन होते थे इनकी निब अलग मिला करती थी, और वो क्या होती थी, एक मशहूर ब्रांड भी होता है जेड की निब का करते थे, जेड की निब। उससे पहले हर होल्डर भी वो तो ऐसे डोबा लगा के स्याही का कलमों के बाद आया ये। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जो पेन होता था ना, उसका वो नीचे वाला जो छोटा ढक्कन होता था ना, जिसको ऐसे खोल के तो स्याही भरते थे, वो भी अक्सर टूट जाता था। हाँ जी, हाँ जी। और फिर बगैर ढक्कन के ही बेचारा जिਵੇਂ बच्चे का पजामा नहीं लथा होता, इस तरह पेंट का ढक्कन लथा होता था, वो बड़ा अजीब लगता था। एक और मजे की चीज जो होती थी ना, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो होता था ना, वो पेन इस वाले जेब में लगाने को फख्र महसूस करता था, पढ़ा लिखा। बल्कि बाकायदा जिस तरह घर से रुमाल हाँ जी। या साफ सुथरे लोग इस तरह की अपनी ऐनक या चीज लेके निकलते हैं, हाँ जी। वो पेन भी बाकायदा इधर लगा के बाहर जाते थे। ये मुझे थैला बता रहा था, कहता मैं भी पढ़ा लिखा लगने के लिए ना पेन यहाँ पे लगा लेता था। कहता मोहल्ले में अक्सर बुजुर्ग मुझे मिलते थे, कहते थे पुत्र ना तेरा नहीं बनता। नहीं, बेवकूफी करता था ना, फिल्म देखने जा रहे हैं तो पेन ला रहे भाई आते हैं ना, तो उसे सुल्तान रही मुस्तफा कुरैशी ਨੂੰ नंबर दे के भाई जी ਤੁਹਾਡੇ 100 ਚੋਂ 78 ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ कुरैशी साहब ਤੁਸੀਂ होली बोले हो, मैं 62 ਤੋਂ ਵੱਧ नहीं दे। अच्छा, वो जो अभी निब की बात हुई थी, ये निब और दूसरी तीसरी, वो निब अक्सर अगर जोर से ऐसे दबाने से टूट जाती थी तो वो नहीं मिल जाती थी। उस निब को कई जो खुश खत लिखने के शौकीन हजरात थे, वो कैंची के साथ आगे से काट भी लेते थे, थोड़ी सी मोटी लिखाई करने के लिए। एक अद्धे पेन को जरा चौड़ी निब वाला भी बना लेते थे, उससे जरा हेडलाइन लेते थे, और छोटी लिखाई दूसरे पेन। सवाल मोटी लिखाई से, जवाब छोटी लिखाई से। हाँ। अच्छा दीदी, जो आप बात कर रहे हो जेब के ऊपर पेन लगाते थे, जब कोई रिश्ता होता है कोई रिश्तेदारी में, तो वहां भी लोग लगा के, तो पता चला था ये पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा, वो जो इधर बाद में अंदर से गोगा निकलता। अच्छा, जो इधर जेब में पेन लगाया जाता था, वो भी अक्सर चोश हो के या लीक करके इधर एक दाग लगा देता, निशान पड़ जाता। हाँ जी। और फिर बंदा देखता था कि यार मैं कद लिए पढ़ा लिखा होने के चक्कर च मैं 1200 का सूट खराब कर बैठा। अच्छा, एक इस पेन का बड़ा ही बेहुदा इस्तेमाल होता था कि आप किसी बच्चे के साथ अगर कोई लड़ाई हो गई है या कोई एक टेंशन चल पड़ी है, तो उस बच्चे का मुंह उधर होने के साथ ही ना, उस बच्चे के पीछे पेन खोल के तो ऐसे जोर से स्याही के छींटे डाल देते थे, उसके कपड़े बर्बाद कर देते थे। उसको पता नहीं। किसी वक्त तो सामने भी कर देते थे, या किसी वक्त अल्लाह ना करे जो कान टूटे होते थे ना अकाड़े के, वो पेन की निब भी मार देते। अच्छा, एक और चीज मैं आपको याद करवा दूं पेन के हवाले से, कि सबसे महंगा पेन हमारे दौर में पार्कर का गिना जाता है। अब भी शायद वही हो, मगर और भी बहुत से निकल आए हाँ जी, होंगे। बहुत से हैं। मगर पार्कर का पेन जो है ना, वो बड़ा कोई अमीर आदमी दूसरे को गिफ्ट देता था। पार्कर का पेन दिया है जी उसने, आए हाय हाय।
ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ وقت آپ کا ہے، چاہے تو اسے سونا بنا لیں، چاہے تو سونے میں گزار دیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.